Good afternoon. सभी को नमस्ते। Today we are going to study Genesis chapter 17. और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्पत्ति उसका 17 अध्याय से। So, there are longer scriptures I'm going to read. और आज का अध्याय ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है। So, from verse 1 to 17, chapter 17, from verse 1 to uh, 13. उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसका 1 पद से 13 पद तक। Uh, Let me read the scripture first. After that, Brother Jackson. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, I am Almighty God, walk before me and be blameless. जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। And I'll make my covenant between me and you, and will multiply you exceedingly. मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। Then Abram fell on his face, and God talked with him, saying, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया। As for me, behold, my covenant is with you, and you shall be a father of many nations. देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। No longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham, for I have made you a father of many nations. इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराया दिया है। I will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of you, and the kings shall come from you. मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। And I will establish my covenant between me and your descendants after you in their generations for an everlasting covenant to be God to you and your descendants after you. और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। Also, I give to you and your descendants after you the land in which you are a stranger, all the land of Canaan, as an everlasting possession, and I will be their God. और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। And God said to Abraham, as for you, you shall keep my covenant, and you and your descendants after you throughout their generations. फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। This is my covenant which you shall keep between me and your descendants after you. Every male child among you shall be circumcised. मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। And you shall be circumcised in the flesh of your foreskins, and it shall be a sign of the covenant between me and you. तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। He who is 8 days old
among you shall be circumcised, every male child in your generations. He who is born in your house or bought with money from any foreigner who is not your descendant. पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब उनका खतना किया जाए। He who is born in your house and he who is bought with your money must be circumcised, and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रूपे से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, वह युग युग रहेगी। Today, we read the Word of God, Genesis chapter 17. आज हमने उत्पत्ति उसका 17 अध्याय से पढ़ा। Whenever I read these scriptures, it surprised me a lot. और जब भी मैं इस अध्याय से वचन पढ़ता हूं तो मैं बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता हूं। But again, repeatedly, when I read it, how it keeps a lot of mysteries. और जब मैं इसे बार बार पढ़ता रहता हूं तो मैं जान पाता हूं कि इसके अंदर कितनी गुप्त बातें छिपी हुई है। And then to get the faith to the Word of God, actually everything is drawn like a picture, otherwise like a map. और वचन से विश्वास पाने के लिए अगर हम वचन पढ़ रहे हैं तो वो ऐसा ही है जैसे एक पिक्चर, एक ड्राइंग बनी है। When we drive to the new places, at that time, with the navigation, we are not afraid. और जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अगर हमारे पास मैप है तो हम कभी भी डरते नहीं हैं वहां जाने के लिए। So, the Word of God should navigate our future and our heart. तो परमेश्वर का वचन भी जो है वो हमें हमारे भविष्य के लिए सही रास्ता दिखाता है। Today, simply, we are going to study here Genesis chapter 17. और आज हम उत्पत्ति उसका 17 अध्याय में अध्ययन करेंगे। First, you may find Abraham was not called Abraham from the beginning. और आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अब्राहम पहले से ही अब्राहम नहीं कहलाता था। Up to his age 99 years old, before God changed it and called his name was Abram. और 99 वर्ष की उम्र में जब परमेश्वर ने उसका नाम बदला, उससे पहले उसका नाम क्या था? उसका नाम था अब्राम। But all of a sudden, when he became 99 years old, the Lord appeared to Abram. परंतु जब अब्राम अब्राम 99 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर उसके सामने आया। Directly he said to him, I am Almighty God. और परमेश्वर ने उससे क्या कहा? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। It is a wondrous actually word of God. और बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला वचन है ये। You know, nothing is possible with man, but nothing is impossible with God. और मनुष्य के लिए कुछ चीजें असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। When we actually hear the word of God, we can understand God is Almighty. और जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हम क्या जानते हैं? परमेश्वर महान है। He has the power to do all things as He wills. और उसके पास शक्ति है किसी भी चीज को करने की। That's why there is nothing that can be difficult to God. इसलिए कोई भी चीज परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं है। You're right? Then everybody should understand He is Almighty. Then as He wills, He is able to do all things. और सबको क्या समझने की जरूरत है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो जैसा चाहता है वैसा कर सकता है। For Indians to get actually a visa extension here in Korea, how much you have been troubled?
और भारतीय लोगों को वीजा एक्सटेंशन करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। But if you are with your Father who is Almighty, then no problem. लेकिन अगर आप अपने पिता के साथ हैं जो सर्वशक्तिमान है तो कोई समस्या नहीं। Okay? Yes, you think about this. Everyone has their own father. और आप इस बारे में सोचिए, सबके पास अपना अपना पिता है। Some fathers will be the fish seller at the market. और कुछ लोगों के पिता मछली बेचते हैं बाजार में। Some will go to school to teach others as a teacher. और कुछ ऐसे पिता हैं जो कि टीचर हैं, स्कूल जाते हैं। Some are farmers. और कुछ किसान हैं। You're right. But there are many actually different kinds of fathers who live in this world. और इस दुनिया में बहुत ही अलग अलग प्रकार के पिता हैं। But how you came to meet your extremely highest father, और लेकिन आप अपने सबसे बड़े पिता से कैसे मिल सकते हैं। are the son of Almighty God. आप क्या परमेश्वर के पुत्र हैं। Really, do you believe Almighty God, He is your father? और क्या आप सच में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर, शक्तिमान परमेश्वर आपका पिता है। You can be proud of God because He is Almighty Father. और आप गर्व कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है। But here, first He said, walk before me and be blameless. और लेकिन यहाँ पे शुरुआत के वचन में क्या लिखा है, मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा। How we can walk before God and how we can walk blamelessly. और हम कैसे परमेश्वर के सम्मुख चल सकते हैं, हम कैसे सिद्ध होते जा सकते हैं। How to walk before God, how not to be blameless is totally included in the covenant God is going to say. और परमेश्वर ने जो यहाँ वाचा दी है, उसमें परमेश्वर के सम्मुख चलना और परमेश्वर के सम्मुख सिद्ध होना दोनों ही है। If God is not going to make us walk before God, how can you walk before God? अगर परमेश्वर हमें नहीं बनाता है परमेश्वर के सम्मुख चलने के लिए, तो हम खुद से कैसे चल सकते हैं। We are human being. We are actually full of blames, right? और हम मनुष्य हैं और हमारे पास बहुत सारी कमजोरियां और बुराइयां हैं। No one can be blameless. कोई भी सिद्ध नहीं हो सकता। Then for us to be blameless can be our work, only God's work. तो सिद्ध होने के लिए क्या हमें काम करने की जरूरत है या परमेश्वर को काम करने की जरूरत है। If God is going to say, walk before me and be blameless, then He must make us walk before Him and He must make us never to be blameful. और अगर परमेश्वर ने हमें कहा है कि मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा, तो परमेश्वर को ही हमें ऐसा बनाने की जरूरत है ताकि हम उसके सम्मुख चल सकें और हम सिद्ध हो सकें। When you hear the word of God, how you must understand. तो जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो आपको किस रीति से समझने की जरूरत है। Will you say to yourself, uh, I must walk before God and I must be blameless? और जब आप ये वचन को पढ़ते हैं तब क्या आप खुद से कहते हैं कि मुझे परमेश्वर के सामने अच्छी रीति से चलने की जरूरत है, मुझे सिद्ध होने की जरूरत है। Then you are very wrong अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप बहुत गलत हैं। because we are not able to do like this. क्योंकि हम खुद से ऐसा नहीं कर सकते। Then how you must understand the word of God then? तो आपको इस वचन को किस रीति से समझने की जरूरत है। Ah, God is going to let me do as whatever God says to me. हाँ, परमेश्वर मुझे बनाएगा जो परमेश्वर कह रहा है वैसा करने के लिए। Before there was a light, wasn't God actually who said?
let there be light. और जब इस दुनिया में अंधेरा था, उजाला नहीं था, तब परमेश्वर ने क्या कहा? उजाला हो। As he said, he created the light. और जब उसने वो वचन दिया, तब उजाला हो गया। Who did this work? ये काम किसने किया? God did like that. परमेश्वर ने किया। In the same way, all the time when you hear the word of God, there are two different types of people. तो हमेशा जब भी आप वचन सुनते हैं, तब दो तरह के लोग आपके अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। For example, you love your brothers and sisters, then we have to love brothers and sisters like this. तो उदाहरण के लिए वचन अगर कहता है तुम अपने पड़ोसियों से, भाई बहनों से प्रेम करो, तो मन में क्या आता है? मुझे अपने भाई बहनों से प्रेम करना है। But there are different types of the people. No, how I am able to love my brother and sisters. तो इस दुनिया में लेकिन अलग अलग तरह के लोग हैं, तो हम कैसे अपने भाई और बहनों को प्रेम कर सकते हैं? Even before small matter also, easily I misunderstand, easily I get angry. और छोटी छोटी बातों की वजह से भी मैं गलत समझता हूं, और कई बार मैं गुस्सा हो जाता हूं। It's not that I don't have desire to love my friend and my brothers and sisters. ऐसा नहीं कि मेरे पास इच्छा नहीं है कि मैं अपने दोस्तों को और अपने भाई और बहनों को प्रेम करूं। I want to, but I don't have power to do God's words. मेरे पास इच्छा है, लेकिन मेरे पास वो ताकत नहीं है परमेश्वर के वचन को पूरा करने की। Why God would not know what kind of person I am? तो क्या परमेश्वर नहीं जानता मैं कैसा प्रकार का इंसान हूं? As long as He's not going to make me do as whatever He says, then I can do nothing. जब तक परमेश्वर मुझे नहीं बनाता जो वचन उसने कहा है उसे पूरा करने के लिए, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। Knowingly, if He would be able to say to me His words, then definitely He is going to make me do His work. और अगर परमेश्वर मुझे जानता है, फिर भी परमेश्वर अगर मुझे ये वचन दे रहा है, तो वही परमेश्वर मुझे बनाएगा उस वचन को पूरा करने के लिए। Then you will say to yourself, this time how God is going to let me do it. I'm waiting. I will see. और उसके बाद आप ऐसा सोचेंगे तो आपके मन में क्या आएगा? चलिए अब देखते हैं परमेश्वर मुझे कैसे शक्ति देगा ये काम पूरा करने के लिए। You will understand the word of God not as your work you have to do, as a work God is going to do for you. तो जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप क्या जान पाएंगे कि वचन जो दिया है परमेश्वर ने, वो आपका काम नहीं लेकिन परमेश्वर का काम है। Amen. That's why the way to receive the word of God is different. According to according as whether you are born again or not. इसीलिए जब एक इंसान पुनर्जन्म पाता है, तो वचन को सुनकर उसको समझने का जो तरीका है वो एकदम ही अलग हो जाता है। You did something nicely. That's why were you saved? क्या आपने बहुत अच्छा काम किया कुछ इसलिए आपका पुनर्जन्म हुआ? No, salvation is the work of Savior. उद्धार जो है वो परमेश्वर का काम है। We are the people who have been fallen into the sin. और हम ऐसे लोग हैं जो कि पाप में गिर चुके हैं। That's why among us there is no one who could come out of this condemnation and hell. इसीलिए कोई भी इंसान खुद की शक्ति से इस दंडाज्ञा और नरक से खुद से निकल नहीं सकता। When God is Almighty, लेकिन जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, even He can save us from our sin by cleansing our sin through the blood of Jesus. और वो इतना महान है कि हमारे पापों को भी धो सकता है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। So God is Almighty. इसलिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। Amen. When we can do nothing, when we are powerless, because of God who is Almighty, no problem. इसलिए जब हम कमजोर हैं, जब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए कोई समस्या नहीं। And then after that, he said, I will make my covenant between me and you.
और परमेश्वर ने वचन में क्या कहा, मैं अपनी ये वाचा खुद मुझ में और तेरे बीच में बांधता हूं। Can you make a covenant? क्या आप वाचा बांध सकते हैं? Or we can say with our mouth, but we don't have power to keep it. हम मुंह से कह सकते हैं कि मैं वाचा बांधता हूं, लेकिन हमारे पास ताकत नहीं उसे रखने की। That's why, among us, no one is proper to give the covenant. इसलिए हमारे बीच में कोई भी ऐसा नहीं जो कि समर्थ है वाचा बांधने के लिए। If somebody is going to make a covenant, not only speaking of covenant, he must be able to make it completed. इसलिए अगर किसी को वाचा बांधनी है तो सिर्फ वाचा कहने के लिए समर्थ ना हो, लेकिन पूरा करने के लिए भी वो समर्थ होना चाहिए। That's why the word of God is the reality. इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है वही सत्य है, Because he has the power to make his word come true. क्योंकि परमेश्वर के पास ताकत है अपने वचन को सिद्ध करने की। Okay. As a truth, as the reality, when we hear the word of God, it is so easy for us to receive it. इसलिए जब परमेश्वर के वचन को आप सत्य के रूप में, रियलिटी के रूप में सुनेंगे, तो बहुत आसान है उसे ग्रहण करना। Who is a maker of covenant here? तो यहाँ पे वाचा बांधने वाला कौन है? As you understand, Almighty God. जैसे कि आप सही समझे, परमेश्वर। Amen. That's why, this is the word of God that tells God is going to make his covenant and show his work as he showed his covenant. और यहाँ पे जैसे परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ही ये वाचा बांध रहा है, और परमेश्वर ही है जो कि इस वाचा को पूरा करने वाला है। After that, he said, and I will multiply you exceedingly. और यहाँ पे उसके बाद परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। Up to the age of 1919, 99 to Abraham, right? How और many boys were there under him? और अब्राहम जब 99 वर्ष का था तो उसके कितने बच्चे थे? Only one boy, Ishmael. उसका सिर्फ एक ही बेटा था, इश्माइल। But he was not the promised son. लेकिन वो वाचा का संतान नहीं था। You're right. In reality, between Abraham and Sarah, there was no son still. और यहाँ पे अब्राहम और सारा के बीच में कोई भी बच्चा नहीं था। That's why everyone should understand, though, when the word of God, Genesis chapter 17, was written, still there was no actually a son named Isaac. इसलिए आप सबको क्या समझने की जरूरत है कि जब उत्पत्ति उसका 17 अध्याय लिखा लिखा गया, तब तक अब्राहम का जो बेटा था इसहाक, वो जन्म नहीं लिया था। Even Sarah was not conceived. और सारा भी गर्भवती नहीं थी उस वक्त। At that time, he said, I will multiply you exceedingly. और इस समय परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। When we see there was no son, but he is going to tell about the multitude of his descendant. एक तरफ यहाँ पे उसके कोई भी बच्चा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैं तेरे जाति को, वंश को बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। But Abraham tried to multiply his descendants. क्या अब्राहम को कोशिश करना चाहिए कि अपने वंश को बढ़ाए? Or better for him to believe God is going to his descendant to multiply it. लेकिन और उसके बजाय क्या विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर ही मेरे वंश को बढ़ाएगा। This is the word of God. God said to him, और ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर ने उससे कहा। because he was almighty, that's why he was able to say like this. क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो ये कह सकता है। I mean to say, when you hear the word of God, actually, you'd better not try to do something taking a lot of burden.
तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर से कोई वचन पाते हैं तो उसके लिए खुद से कुछ बोझ लेने की या करने की जरूरत नहीं है। Like God who showed the dream in the dream of Joseph and who made him governor of Egypt. जैसे कि यूसुफ जिसको कि परमेश्वर ने ही स्वप्न दिखाया और जिसे परमेश्वर ने ही इस इजिप्ट का गवर्नर बनाया। That is God who gave a dream to him. और वो परमेश्वर ही है जिसने उसे स्वप्न दिया। So here Abraham fell on his face. तो यहाँ पे अब्राहम अपने मुंह के बल गिरा। What is this? I can do nothing, but you said to me, that's why I believe you will do it. इसका अर्थ क्या है? मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन तुमने मुझे वो वचन दिया, इसलिए तुम ही पूरा कर सकते हो। Verse 4 says, as for me, behold, my covenant is with you. वचन 4 में क्या लिखा है? देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। Yes. The word, only one sentence was given to him, but God said, my covenant is with you. यहाँ पे परमेश्वर ने सिर्फ एक छोटा सा वचन उसे दिया, लेकिन क्या कहा? देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। And then, what is the difference like that? तो इसमें क्या अंतर है? Abraham was a person God's covenant was with. और अब्राहम ऐसा मनुष्य था जिसके साथ परमेश्वर की वाचा बंधी हुई है। That's why, he had a very hopeful future इसलिए उसका भविष्य बहुत आशावादी है। because he heard the word of God, Almighty God said to him. क्योंकि उसने वो वचन सुना जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उससे कहा। All right. And the Bible said, you shall be a father of many nations. और बाइबल हमें क्या कहती है? तुम बहुत सी जातियों के पिता होगे। You think about to make one nation like India, how many actually numbers of the people you need? और आप इस बारे में सोचिए, एक देश जैसे कि भारत, कितने लोगों की जरूरत है इस देश के लिए पूरा करने के लिए? Now, India is the most populated country, 1.5 billion. और भारत जो है सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, 150 करोड़। You came from that greatest country. और आप सब उस बड़े देश से आए हो। No one now can despise India. और कोई भी है जो इंडिया को तुच्छ नहीं कर सकता। Number one richest country of their descendants. और सबसे अमीर देशों में गिना जाता है इंडिया। You can be proud of your country. आप अपने देश के बारे में गर्व कर सकते हैं। You right? Bible said like this. Uh, God is going to make Abraham as a father of many nations. और बाइबल हमें क्या वचन दे कहती है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तुम बहुत सी जातियों के पिता होगे। When he heard it, he had nothing. Even he didn't have any son of himself. और जब उसने ये वचन सुना उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास खुद का बेटा भी नहीं था। That's why in whatever he saw with his fleshly eyes, he looked like a beggar. और अगर अपनी वो शारीरिक आंखों से देखेगा तो वो एक भिखारी के जैसा दिखाई देगा। But in the word of God that he heard, there were so many people and many countries. लेकिन परमेश्वर के वचन के अंदर अगर वो खुद को देखेगा तो बहुत सारे लोग उसकी जाति में हैं। In his eyes, what kind of person he was? He was a rich man. अपने खुद की आंखों में वो किस प्रकार का इंसान था? क्या वो बहुत धनी था? He looked like a common person. वो एक बहुत ही साधारण व्यक्ति दिखता था। In the word of God, actually, he was the father of many nations. लेकिन परमेश्वर के वचन के अंदर वो बहुत सी जातियों का पिता था। Amen. Amen. Now also you think about this. When you see yourself, you are one of Indians. और जब आप इस बारे में सोचिए, जब आप खुद को देखते हैं तो आप एक भारतीय हैं। Among many Indians, you are the most precious person. लेकिन सारे भारतीयों में आप सबसे किस्मत वाले लोग हैं। Amen. Because in the word of God,
You can be proud of yourself. क्योंकि आप परमेश्वर के वचन में खुद पर गर्व कर सकते हैं। There is some song like this. There is none like you. Huh? There is none like you, right? और एक गीत है, तुम सा कोई नहीं। You see, verse 5 says like this: No longer shall your name be called Abraham, but your name shall be Abraham. और वचन 5 में क्या लिखा है? इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। Directly, God changed his name. और सटीक रीति से परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया। Could you find, there was anything that showed his change outwardly? और कोई भी ऐसी चीज है जिससे आप बाहरी रूप से देखकर कह सकें अब्राहम बदल गया? No, he looked like the same person. नहीं, वो बाहरी रूप से वैसा ही है। Now I can ask you, where could you find the change of Abraham? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब्राहम का बदलाव आप कहां पे देखेंगे? From what time on, his name was called Abraham. और किस समय से उसका नाम अब्राहम रखा गया? From the moment God declared, from now on I will call you Abraham. उस घड़ी से जब परमेश्वर ने कहा अब तेरा नाम अब्राहम होगा। All right? In the same way, from the moment God gave you righteousness of God to be made as righteous. तो उसी तरीके से जब से आपको परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता दी है, तब से आप धर्मी हैं। From that time on, our identity was totally changed like that. और उसी घड़ी से आपकी पहचान बदल गई है। Now, who will change us? तो कौन है जो हमें बदलेगा? Who has the power to change us? किसके पास शक्ति है हमें बदलने की? God can change it. He has the power to change us. और परमेश्वर के पास शक्ति है हमें बदलने की। How we understand whether we are changed or not then? और हम कैसे समझते हैं हम बदले हैं या नहीं? It is written in the Bible or not? कि बाइबल में लिखा है या नहीं? Huh? Never looking at my work, never looking at myself. Is it true that God changed our identity or not in the Word of God? अपने शरीर को ना देख के, अपने कार्यों को ना देख के, लेकिन परमेश्वर ने वचन में हमारी पहचान को बदला है या नहीं? The Abraham also, now as it is written, no longer shall your name be called Abraham. और यहाँ पे वचन में क्या लिखा है? इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा। When people, they called him Abraham, Abraham, but in his heart, no, I am Abraham. और लोग उसे शायद कह रहे होंगे अब्राम अब्राम, लेकिन उसके हृदय में वो क्या बन चुका है? अब्राहम। You also will think like that. If I go back to India, my father, my mother, all my friends, all my relatives are Hindu. और जब आप वापस भारत में आएंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपके पिता, आपके माता, आपके दोस्त, सब लोग क्या हैं? अभी भी हिंदू हैं। We are human beings. We are sinners. और हम मनुष्य हैं और हम पापी ही हैं। But if God said, no longer shall your name be called Abraham, as it is, we also, as a righteous, we can declare we are justified. और जैसे कि यहाँ पे परमेश्वर ने कहा तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, वैसे ही हम कह सकते हैं कि हम और पापी नहीं हैं, हम अब धर्मी हैं। Amen. Then through Genesis chapter 17, yeah, this also gospel like this. तो आप उत्पत्ति उसका 17 अध्याय से भी पढ़ के क्या पा सकते हैं? यही सुसमाचार है। Amen or not? Yes, in the Word of God, we can find how to receive the faith. और हम परमेश्वर के वचन से ये जान सकते हैं कि किस तरीके से विश्वास हम पाते हैं। To believe it, you must know first. और इसे विश्वास करने के लिए आपको जानने की पहले जरूरत है। Why people, they want to have faith, but why they do not have faith? Do you know that? और लोग जो कि विश्वास पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास विश्वास नहीं, आप जानते हैं क्यों? Only because
they do not know exactly. क्योंकि वो सही सटीक रीति से वचन नहीं जानते। Why they do not know exactly? Do you know that? और वो सटीक रीति से क्यों नहीं जानते, आप जानते हैं? So far, they haven't met such a born again real Christian who could teach them. क्योंकि वो अब तक एक उद्धार पाए हुए मसीही से नहीं मिले जो कि उनको वचन समझा सके। Now you are learning. आप अभी सीख रहे हैं। Then when you preach the word of God, then you also can make the people be born again or not. और लेकिन जब आप भी प्रचार करेंगे तो आपके द्वारा भी लोग पुनर्जन्म पाएंगे या नहीं? Opening the Bible like Genesis chapter 17, one by one, as Pastor Kim demonstrated. You also do the same thing. और अपना बाइबल को खोलकर उत्पत्ति उसका 17 अध्याय से एक के बाद जैसे पास्टर किम ने हमें समझाया, वैसे ही आप भी प्रचार कर सकते हैं। Amen. Afterwards, you can see here, for I have made you a father of many nations. और इसके बाद क्या लिखा है? क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। Here, he said exactly, I have made already. My making is finished. और यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है? मैंने तुझे मूल पिता ठहरा दिया है। Oh, it is so strange, right? You are a father of many nations already. और यहाँ पे बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है, तुम पहले ही मूल पिता बन गए हो। Whether you have many children or not, right now, that's not the problem. और इस वक्त तुम्हारे पास बच्चे हैं या नहीं, ये समस्या नहीं है। He also should have this faith. और दीप के पास भी यही विश्वास होने की जरूरत है। In the word of God, there are many nations. पर वचन में बहुत सारे लोग हैं। Amen or not? Amen? Yes. That's why through the word of God, when you judge all things, it is right. और जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा खुद को न्याय करेंगे तो वो ही सही है। The verse 6 says, I'll make you exceedingly fruitful. और वचन 6 में क्या लिखा है? मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। And I'll make nations of you. और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा। And many kings shall come from you. और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। In the promise of the Lord, who is a worker, who is a maker? और परमेश्वर के वाचा में काम करने वाला कौन है? God never said to you, you do this or that. और परमेश्वर ने कभी नहीं कहा तुम ऐसा या वैसा करो। In the word of God, there is a work God only has to do. और परमेश्वर के वचन में सिर्फ परमेश्वर ही है जो काम करता है। Amen. Yes. God never put any burden on you. परमेश्वर ने कभी भी आपको कोई बोझ नहीं दिया। Okay. That's why, when you read the word of God, you need to have a real wisdom to understand the Bible. इसलिए जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आपको ये बुद्धि की जरूरत है ताकि आप सही सटीक रीति से समझ सकें। And verse 7 said, I will establish my covenant between me and you. और वचन 7 में लिखा है, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं। You see, and your descendant. और परमेश्वर क्या कह रहा है? तेरे वंश के साथ भी। After me there is no one, sir. और मेरे पीछे मेरे नीचे तो कोई नहीं है। Oh, I have no actually sons and no daughters. मेरे But he mentioned about descendants. मेरे तो कोई भी बेटा बेटी नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसकी जाति के बारे में, वंश के बारे में बात कर रहा है। When there were no descendants of Abraham, already the covenant was ahead and before. और जब उसके वंश है भी नहीं, उससे पहले ही परमेश्वर ने वो वाचा उसके साथ बांध दी है। Before they existed in this world, the word of God already existed and had been spoken. अभी इस दुनिया में उसका जाति, उसका वंश जन्म भी नहीं लिया, लेकिन उस वक्त भी परमेश्वर के वचन का अस्तित्व है।
before Jacinto was born in this world, जब जतिंदर इस दुनिया में जन्म लिया, already Jacinto's sin was cleansed. That's the same rule by Jesus Christ. उससे उसके जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर ने उसके सारे पापों को धो दिया है। When he was still Hindu, already it got, before 2000 years ago, Jacinto's sin is totally gone away. जब वो हिंदू ही था, उससे पहले, उससे काफी पहले पहले 2000 साल पहले ही परमेश्वर ने उसके सारे पापों को खत्म कर दिया है। Abraham will tell like this, where are my descendants? Where are my descendants? Not in your eyes, in my covenant. Huh? और अब्राहम देखेगा और कहेगा, मेरे तो कोई बच्चा नहीं है, मेरे तो कोई वंश नहीं है। परमेश्वर क्या बोलेगा? तुम्हारी आंखों में नहीं, लेकिन मेरे वचन में है। You know, faith is eyes to see what is not visible. और विश्वास क्या है? जो चीजें नहीं दिखाई दे रही, उन चीजों को देख पाना ही विश्वास है। Amen. That's why, the man who has the faith, the man who doesn't have faith, their life can't be the same thing. इसीलिए एक इंसान जिसके पास विश्वास है और एक इंसान जिसके पास विश्वास नहीं है, उनका जीवन पूरी तरीके से अलग है। Yes. Then after the Bible said like your descendants after you in their generations fall on everlasting covenant, everlasting blessing. इसलिए परमेश्वर यहाँ वचन में क्या कहता है कि तेरे वंश और उनके भी वंश को जो वाचा है, वो बहुत लंबे समय तक रहेगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। I will be God to you and to your descendants even after you to all your generations. और मैं तेरे और तेरे वंश का भी और तेरे वंश के वंशों का भी परमेश्वर ठहरूंगा। After Rajiv, there may be 2 lakh people, 5 million people, I don't know. और अब्राहम, ये राजीव के बच्चे होंगे तो कितने बच्चे होंगे? 2 लाख, 20 लाख, 50 लाख, मुझे नहीं पता। When you are involved in the covenant of God, of course, they will have everlasting life. Our gospel will be preached to all of them. और जब आप वचन में देखते हैं तो हमारा जो वचन में जीवन है, वो बहुत ही लंबे समय तक, अनंत काल का है, और ये वचन सब लोगों में प्रचार किया जाएगा। Amen. God is Almighty. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। Repeat. God is Almighty. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आप सब भी So कहिए। God has hidden all the secret of the future and the eternity in His Word of God. इसलिए परमेश्वर ने भविष्य के और अनंत काल के जितने रहस्य हैं, वचन में छुपा कर रखे हैं। Okay. Today, this much I'm going to tell you. और आज मैं इतना ही आप सबको प्रचार करूंगा। I taught to you how to understand the Bible exactly. और आज मैंने आप सबको सिखाया कि किस तरीके से वचनों को समझना है। Thank you, everybody. बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।